बेंगलुरु में कर्नाटक के वजीर एम बी पाटिल ने कहा कि रियासती हुकूमत ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शौरी तौर पर MOUs पर दस्तखत न करने का फैसला किया। इसके बजाय हुकूमत कर्नाटक ने आलमी और हिंदुस्तानी सरमाकारों के साथ 45 दो तरफा मुलाकातें की। उन्होंने मजीद कहा कि डेवोस में की गई ये दो तरफा बातचीत मुस्तकबिल में ठोस सरमाकारी में तब्दील होगी और इससे कर्नाटक में सनअती तरक्की और रोजगार के मौके को फरोग मिलेगा। So from some global economic forum, we had 45 plus meetings, probably maybe the highest amongst various other states. I don't know if I'm correct. A wide range of companies, right from space tech to energy to data centers, GCCs, much more. Because Bangalore has got an ecosystem, Karnataka has got an ecosystem and talent. We have been capital of ITBT. We are machine tool capital, aerospace and defense, we are number one. 65% of the country's contribution comes from Karnataka. So that being the situation, we could understand how the world is progressing, given the geopolitical situation and the disruptions which are happening now with AI, robotics, quantum computing, data centers, so many things which are futuristic when future advances where that will change the world. And that's where you learn things from Davos. तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने वेल्लोर में टाइडल न्यू पार्क का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर P. चिदम्बरम ने भी शिरकत की। यह प्रोग्राम एग्रीकल्चरल एंड लॉ कॉलेज के अहाते में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फ़लाही स्कीमों के तहत मुस्तहिक़ीन में इमदादी अशिया और माली फ़वाइद भी तक़सीम किए गए। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने और टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। தமிழ் நாகரிகம் ஓங்கி இருந்ததற்கான கீழடி தடயங்கள் கிடைச்ச மண் இந்த மண். பலரின் வீரத்தால் தியாகத்தால் சிவந்த மண். முத்துவடுகநாதன், பெரிய உடையாத்தேவர், அவர் மனைவி வீரமங்கை வேலுநாச்சியார், அவரது மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியார்னு ஒரு குடும்பம் வாழையடி வாழையா ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து நின்று தாய் நிலத்தை காத்த மண் இது. விடுதலை மற்றும் தியாகத்தின் அடையாளங்களா வாழ்ந்து இந்த மண்ணுக்கு உரமாகியுள்ள மருது சகோதரர்களை தந்த மண் அல்லவா சிவகங்கை. இவக மட்டுமல்ல, அடுத்த நிமிடம் மரணம்னு தெரிஞ்ச உடல்ல நெருப்பை கட்டிக்கிட்டு ஆயுத கிடங்குல குதிச்ச குயிலி வாழ்ந்த மண் இந்த மண். அதனாலதான் இவங்க பெறையெல்லாம் சொல்லி இங்க நிற்கும் போது எனக்குள்ள தமிழ் வீரமும் உணர்ச்சியும் பொங்கி எழுது. இந்த விழாவை மிக சிறப்பா ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் அவர்களுக்கும் बेंगलुरु में रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के बानी और चेयरमैन C.J. राय की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इनकम टैक्स महकमे की जानिब से जारी तलाशी के दौरान C.J. राय ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वाक़या अशोक नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल दोपहर 3 से 3:30 बजे के दरमियान पेश आया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर दफ्तर के दिगर मुलाजिमीन कमरे में पहुंचे, जहां राय जख्मी हालात में पाए गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अरविंद ने पोस्टमार्टम के बाद बताया कि गोली सीने में दाखिल होकर दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हुए जिस्म से बाहर निकली।
बेंगलुरु में रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के बानी और चेयरमैन सी जयराय की मौत पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कर्नाटक के आईटी और बीटी वजीर प्रियंक खड़गे ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। प्रियंक खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि ये वाक़या इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हुक्काम की जानिब से मुबैना हरासानी का नतीजा है। रियासती वजीर ने दावा किया कि कर्नाटक में ये तीसरा या चौथा ऐसा वाक़या है और रियासती हुकूमत इस मामले की मुकम्मल जाँच करेगी और इनकम टैक्स हुक्काम के किरदार का भी पता लगाया जाएगा। Is nothing but pure harassment from the IT and ED officials, and this is going out throughout the country. And this is the third or the fourth instance in Karnataka. We all know how IT, ED, and GST is being used to harass SMEs, MSMEs, individuals, and industrialists. It is a tool for harassment for people who do not listen to the government. But IT, ED, GST rules don't apply to the Adanis of India, the Ambanis of India. It is used as only a tool for harassment here. The government works overtime to ensure contracts are given to Adani. They change policies for Adani and Ambani. They change schemes for them. But for other people who are earning their livelihood in a legal way, this kind of harassment happens. And this is not an accusation by a political party. The family is saying so. So whatever it is, we will investigate. We'll investigate even the IT. तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नामपल्ली नुमाइश में लगे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्टॉल्स का दौरा किया। इस दौरान रियासती वजीर माइनॉरिटी तलबा के साथ गुफ्तगू की। इस मौके पर माइनॉरिटी शोबे के सीनियर अफसर IFS शफीउल्लाह व दिगर भी मौजूद थे। नुमाइश में डिपार्टमेंट की जानिब से तालीमी हुनरमंदी और बाइख्तियार बनाने वाले मनसूबे पेश किए गए। इस दौरान टिमरिस के तलबा की तख्लीकी नुमाइश और हुनरमंदी पर मबनी काम भी दिखाया गया। रियासती वजीर ने तलबा से कहा कि हुकूमत के फराहम करदा मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और मेहनत के ज़रिए तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम ही रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। उन्होंने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने की तरगीब दी और यकीन दिलाया कि हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दामात करेगी ताकि माइनॉरिटी तलबा की तालीम और तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। तो लोग ने पूरा टारगेट अचीव किया है, बट लेकिन मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोग को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और यहाँ पे उनको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, बस आएँ और एप्लीकेशन दे पढ़ा के स्कूल में एडमिशन ले और पढ़ाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे और बच्चियाँ पढ़ना, क्योंकि आजकल बहुत अहम चीज़ है। अगर एजुकेशन नहीं है तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो अगर एजुकेशन है तो वो लोग लड़के अलग अलग गलत इन कामों में और गलत हरकत कर रहे हैं। तो अगर आप स्कूल में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और अपने पेरेंट्स को, अपने स्टेट को इतना अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमारे CM साहब बिल्कुल एजुकेशन में बोलते हैं कभी भी कुछ भी रहेगा तो एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। तो खुद देखिए आज मैं उनको पूरे मुबारकबाद भी दूंगा कि आज वो खुद जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने लीडरशिप के लिए उन्हें बड़े जो सर्टिफिकेट हासिल किए, मैं उनको तहे दिल से हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से बहुत मुबारकबाद दूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि हम उनसे लोग छोटे बच्चे जितने भी हैं उनका एग्जाम्पल ले। और देखिए पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं, कोई भी एज में रहो, कहीं पे भी रहो, एक CM बन के भी फिर भी जाके और अच्छा लीडरशिप सीखना चाह रहे हैं और अच्छा लीडर बनना चाह रहे हैं, तेलंगाना के लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी फिर से मैं पेरेंट्स को एक बार अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को बिल्कुल एडमिशन दिलाइए और पढ़ाई। ज़िला नेल्लूर के कोवूर मंडल में वाक़ई मस्जिद औलिया मदरसे में 12 फरवरी को जलसा इस्तक़बालिया रमज़ान मुनक़्क़िद होने वाला है। इस सिलसिले में पोस्टर जारी किया गया। ये जलसा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद रशादी क़ासमी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद होगा। मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने जलसे में शिरकत की अवाम से अपील की है। मदीना ग्रुप के चेयरमैन इम्तियाज़ ने जलसे को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है। आप लोग जितने हैं नेल्लूर में और सारे आंध्रा से जो भी है सब लोग आने की कोशिश करिए। ये जो पहला साल है, इंशाल्लाह हर साल ऐसा बढ़ते जाना, आपके बच्चों को भी इसमें लाके जमाने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे उम्देपन में इस्लाम का असूल से अरबी हो, उर्दू हो, ये सब सिखा के और नमाज का तरीका अच्छे से सिखा के ये इस मदरसे से इंशाल्लाह ताला सारी दुनिया में अच्छा ईमान फैलना मुझको मैं दुआ करता भी। और इस जो जलसे में नेल्लूर के सब लोग भी
इसमें शामिल होना मुझको कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आने हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाका कोठी में आज सुबह फायरिंग का वाकया पेश आया। रशीद नामी शख्स सुबह कोठी में वाक़ SBI बैंक के ATM में रकम जमा करने गया हुआ था। इस दौरान नामालूम अफराद भी वहां पहुंच गए और रशीद पर फायरिंग की, जिसके बाद वो रकम लेकर फरार हो गए। इस हमले में रशीद शदीद जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही सुल्तान बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमों को मैदान में उतारा गया है। ఎర్లీ అవర్స్లో అరౌండ్ 6:50 and 7 మధ్యలో ఇద్దరు అన్నోన్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్, ఇద్దరు అన్నోన్ అఫెండర్స్ ఈ సుల్తాన్ బజార్ PS లిమిట్స్లోని కోటి SBI బ్రాంచ్ దగ్గర పక్కనే ఉండేటువంటి ATM దగ్గర ఈ విక్టిమ్ పర్సన్ క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రెక్కి చేసుకుని ఉన్నట్టున్నారు. పక్కనే ఉన్నటువంటి బస్ స్టాప్ నుంచి వచ్చి అతన్ని ఒక సపోజిట్లీ తపంచా ఒక రౌండ్ ఫైర్ చేయడం జరిగింది. దాంతో విక్టిమ్కి కాలికి ఇంజరీ జరిగి అతను అక్కడ పడిపోతే అతని బైక్ అండ్ బ్యాగ్ తీసుకొని వీళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి క్లూస్ టీమ్ వచ్చింది, CCTVs వెరిఫై చేస్తున్నాము. సెవెరల్ టీమ్స్ అన్నీ కూడా పెట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్స్ పెట్టి టాస్క్ ఫోర్స్ అండ్ CCS టీమ్స్తో కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసి వీఆర్ వర్కింగ్ ఇట్ అవుట్.